Hello everyone. Today we will do the second measure of central tendency, which is mode. So we will learn how to find the mode of grouped data. The learning objectives for today's lecture is you will all learn how to apply the formula to find mode, and you'll be able to interpret the two measures of central tendency, that is mean and mode. You will be able to interpret these results. To explain the concept of mode of grouped data, I'll take first question of exercise 14.2. Now first question of exercise 14.2 is the following table shows the ages of patients admitted in a hospital during a year. Ages in years and number of patients. Now ages in years 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65, and number of patients are given as this. The meaning of this data is there are 6 patients which are admitted in the hospital are of age 5 to 15 years, and there are 11 patients whose ages were between 15 to 25 years, and so on. Now they are asking us find the mode and the mean of the data given above, compare and interpret the two measures of central tendency. In my previous videos, I have explained how to find the mean by all the three methods. Now in this question, I am leaving it up to you which method you people will prefer. Just use that method and find the mean, because mean you have already done. Now in this video, I will explain how to find the mode, and then we will do the comparison and the interpretation. Now I have written the data of question number 1 like this. Now here we have to find out mode. Now what is mode? Mode आप 9th standard में पढ़ चुके हो. Mode is an observation which is most frequently occur. मतलब ऐसी कोई observation जो सबसे ज़्यादा बार आए, right? So the most frequently occurring observation is mode when you did a 9th standard for ungrouped data. Now you're in 10th standard, you will learn how to find out the mode for the grouped data. जब भी आपने मोड निकालना हो ग्रुप्ड डाटा का, आपने ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्लास इंटरवल्स हैं ये कॉन्टिन्यूड हो. कॉन्टिन्यूड लाइक जो यहाँ की अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की, वही लिमिट लोअर लिमिट होनी चाहिए सेकेंड क्लास की. सो सी द लिमिट्स आर कॉन्टिन्यूड, दीज क्लास इंटरवल्स आर कॉन्टिन्यूड. ये आपका फर्स्ट स्टेप है. यू ऑलवेज चेक अगर क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूड नहीं है, आप सबसे पहले उसको कॉन्टिन्यू करेंगे. राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मोड. सबसे पहला स्टेप कंटिन्यूटी हमने चेक कर ली. नाउ द सेकेंड स्टेप, आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है. राइट, नाउ आउट ऑफ ऑल दीज नंबर्स 23 इज द लार्जेस्ट. सो 23 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है. 23 फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास इंटरवल को हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास. MODAL, मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास एक ऐसा क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग नेम देंगे F1. इसके ऊपर वाली जो इस फ्रीक्वेंसी को प्रिसीड कर रही है इसको हम लोग नेम देंगे F0, और इस फ्रीक्वेंसी के बाद वाली दैट इज इसकी जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग नेम देते हैं F2. नाउ द मॉडल क्लास इज 35 to 45. सो आप यहाँ पर मेंशन जरूर करना कि मॉडल क्लास कौन सी है. सो मॉडल क्लास इज 35 to 45. नाउ व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास? दिस इज द लोअर लिमिट. इसको हम लोग डिनोट करेंगे L से. सो द वैल्यू ऑफ L इज 35. वैल्यू ऑफ F0 इज इक्वल्स टू 21. वैल्यू ऑफ F1 इज 23 and value of F2 is equals to 14. Now H is the class size. Class size आपको याद होगा upper limit minus lower limit. So if you see the upper limit minus lower limit, there is a gap of 10. So H, the value of H is 10 here. Now to find the mode, we will use the formula. Mode is equal to L plus F1 minus F0 over twice of F1
minus f0 minus f2 multiply by h. L क्या चीज है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. f1 क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. f0 is the frequency preceding the model class. Preceding means पहले. Twice of f1, f0 I have explained. This is f2. f2 is the frequency succeeding the model class, right? And h is the class size. Now let's substitute the value. The value of L is 35 plus f1 is 23, f0 is 21, twice of 23 minus 21 minus 14 multiply by 10. So this is equals to 35 plus, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 23 minus 21 is 2. Twice of 23 is 46 minus 21 minus 14. I can write it as minus 35 multiplied by 10. Right? So we have 35 plus 2 over 46 minus 35 is 11 and this is 10. Right? इसके बाद बेटे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ. So 35 बॉड मास लगाते हैं हम लोग. 2 into 10 by 11, so this is 20 by 11. इसके बाद आपने एलसीएम लेना है. एलसीएम लो, नहीं तो आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करो. अगर आप 20 को 11 से डिवाइड करते हो, 20 को 11 से डिवाइड करते हो, 11 1 का 11, 9, 11 8 जा 88, 11 1 जा. सो अगर आप देखो तो ये रिपीट करना शुरू करके, सो आई एम जस्ट राइटिंग 1.81. सो 35 प्लस 1.81 इज 36.81. अब हम लोगों का इधर इस केस में मोड क्या आया? इट इज 36.81. जब भी आप मोड निकालोगे, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका जो आंसर है इट विल लाई बिटवीन द मॉडल क्लास. आपका आंसर मॉडल क्लास की लोअर लिमिट से छोटा नहीं आएगा और मॉडल क्लास की अपर लिमिट से बड़ा नहीं आएगा. दैट इज द मोड विल लाई ऑलवेज बिटवीन द मॉडल क्लास. अब देखिए हमारा 36.81 मोड आया है एंड इट इज लाइंग बिटवीन द मॉडल क्लास 35 to 45. So here the mode is 36.81. So यहाँ पे patient की age years में थी, so I can write it years. Now what is the meaning of mode here? It means इसकी जो interpretation आएगी, इसकी interpretation का मतलब बेटा ये है कि maximum patients जो पूरे साल में who were admitted in the hospital were of age 36.81. अब देखिए यहाँ पे जो डाटा था वो तो डिफरेंट एज ग्रुप का था. तो मोड दैट इज जो मैक्सिमम पेशेंट्स जो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में उनकी जो एज थी इट इज 36.81. दिस इज द इंटरप्रिटेशन. नाउ आई होप यू ऑल मस्ट हैव फाउंड द मीन सो फार. अगर आपने मीन नहीं निकाला प्लीज मीन निकालिए. पॉज दिस वीडियो और यू कैन कम बैक after finding the mean. Then we will do the comparison and we will write the interpretation of mean as well as mode. I have calculated the mean by using the step deviation method. I hope you must have found the mean so far, right? Mean आपका चाहे डायरेक्ट मेथड से निकाला हो, चाहे आप लोगों ने assume mean से निकाला हो, या आपने स्टेप डिविएशन मेथड से निकाला हो. आप अगर निकालोगे आंसर, योर आंसर विल बी 35.375. अगर आप इसकी राउंडिंग करना चाहो तो यू कैन डू द मीन एज विल बी 35.4 years, right? So you can see again I have found the mean by step deviation method. अब यहाँ पर एक्साइज की वैल्यू 6 थी तो मिडिल मोस्ट 2 थी, तो आई हैव टेकन 40 एज ए. आपने अगर 30 भी लिया होगा डजेंट मैटर, आंसर सभी का तीनों ही मेथड से सेम ही आएगा. एंड आई विश कि आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा. सो मीन इज 35.4 एंड मोड हम लोगों का क्या आया था 36.8 years. अब हम लोग कंपैरिजन
और इसकी इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। So now let's do the comparison. Mode is 36.81 years and mean is 35.4. Now which number is greater? Obviously 36.81. So in comparison we can write mode is greater than mean in this question. Now I am writing the interpretation. Interpretation, that is आप इस डाटा से आपको क्या पता लगा, आप क्या चीज बता पाओगे। अब आपको याद होगा मैंने मोड का इंटरप्रिटेशन इस वे से बताया था कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उनकी एजेस 36.81 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, और मीन का इंटरप्रिटेशन होगा ऑन एन एवरेज द एज ऑफ पेशेंट्स admitted in the hospital are of 35.4. So now I am writing the interpretation for mean as well as mode. I have written the interpretation. Mode 36.81 years. This implies maximum number of patients admitted in the hospital are of age 36.81 years, and mean was 35.4 years. So this implies on an average the age of patients admitted to the hospital is 35.4 years. जब भी मतलब मैं आपको थोड़ा सा हिंट या सजेशन दे देती हूँ, कभी भी आपने मोड की इंटरप्रिटेशन लिखनी है आप मैक्सिमम वर्ड से स्टार्ट करना, और अगर मीन की लिखनी है तो आप ऑन एन एवरेज से स्टार्ट करना। नाउ आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस, always remember the class interval for finding the mode. For finding the mode must be continued. ये चीज आप हमेशा याद रखना, अगर क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूड नहीं है तो आपने उसको कंटिन्यू करना है। अब ये चीज आप हमेशा याद रखना। नाउ आई होप आपको पता लग गया आप कैसे मोड निकालना है, और मोड निकालने से पहले आपने क्या चीज का ध्यान रखना है, अपने क्लास इंटरवल का ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूड हो, इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए, और मोड आप जो निकाल रहे हो उसका मतलब क्या है, उससे आपको क्या समझ में आता है, ये जरूर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो समझने की कोशिश करना। इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन में मांगी गई है या नहीं मांगी है, लेकिन आपको जरूर क्लियर होना चाहिए कि मोड आप जो निकाल रहे हो वो क्यों निकाल रहे हो, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है। थैंक यू।